پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ یی نے کہا، پاک فوج نے ہمیشہ سیاسی قیادت کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج چین کے ساتھ انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون میں فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ نوجوانوں کے درمیان بھی روابط بڑھائے جائیں گے۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقات۔ ساتھ تنظیم کی بحالی کی کوششوں پر اتفاق۔ خطے میں تعاون کے فروغ پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم بنگلہ دیشی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی ملے۔ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالد ضیاء سے ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی اور اقتصادی امور پر بات چیت ہوئی۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے اسحاق ڈار کی ملاقاتوں کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا کہ ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ پاکستان نے بنگلہ دیشی طلباء کے لیے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا اعلان کیا۔ 5 سال میں 500 اسکالرشپس دی جائیں گی۔ 100 سول سرونٹس کو تربیت بھی دے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ دو طرفہ تجارتی امور پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا بھی معاہدہ۔ دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیز اور تھنک ٹینکس کے درمیان MOUs پر دستخط۔ دو طرفہ ثقافتی تبادلے کے پروگرام پر بھی دستخط ہوئے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کو انٹرویو دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، دو طرفہ معاہدے تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ ہمیں مثبت، تعمیری اور باقاعدہ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ باہمی تجارتی حجم $1 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ براہ راست فضائی رابطے بھی جلد بحال ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار کل ڈھاکہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ اسحاق ڈار فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ چھتیں، دیواریں گرنے اور دیگر حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طوفانی بارش نے ڈیرہ اسماعیل خان کو ہلا کر رکھ دیا۔ DI خان میں حادثات سے 8 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ طوفانی ہواؤں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی۔ طوفانی ہوا سے کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ سولر پینل اڑ گئے۔ درخت اور بجلی کے پول اکھڑ کر سڑکوں پر گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ لوئر دیر کے علاقے میدان میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مردان میں بھی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بارش سے مردان کے نشیبی علاقے زیریاب۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں گلیات بٹنگی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ بند۔ لینڈ سلائیڈنگ سے سیاح بھی پھنس گئے۔ حویلیاں بائی پاس پر بھی لینڈ سلائیڈنگ سے 20 سے زائد دیہاتی علاقوں کا راستہ بند ہو گیا۔ مانسہرہ بالاکوٹ روڈ بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ جہلم میں موسلادھار بارش سے برساتی نالے بھر گئے۔ نالہ بنہا اور نوالوک کے برساتی نالوں کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں 300 انسانی جانیں بچانے والے 3 چرواہوں کو ہیرو قرار دے دیا۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد بلا لیا گیا۔
वज़ीर आज़म सैकड़ों जाने बचाने के एतराफ़ में तीनों को इनाम देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं, मुझ समेत पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। उधर तर्जुमान जी भी हुकूमत की गज़र के तीनों चरवाहों से मुलाकात, सैलाब की बरवक्त इत्तला देकर कीमती जाने बचाने पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है, अगर चरवाहे सैलाब की इत्तला ना देते तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। बरवक्त इत्तला से तमाम लोग वहाँ से निकल गए। तालीदास के मकाम पर बनने वाली मसनूई झील से अब इलाके को कोई ख़तरा नहीं है। इंडियन हाई कमीशन की जानिब से दरियाई तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 27 अगस्त तक बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी रहेगी। पंजाब के शुमाली इजलाह में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरियाए जहलम, चनाब, रावी और सतलुज में तुग़यानी का अलर्ट। PDMA के मुताबिक सतलुज में गंडा सिंहबाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कसूर से लेकर बहावलपुर तक नशेबी इलाके ज़ेरियाब, हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनाब में 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी हैं। PTMA की ताज़ा रिपोर्ट जारी। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 337 हो गई। सूबे में मजमूई तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुँचा। 577 घर मुकम्मल मुनहदम और 2945 घरों को जज़वी नुकसान हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, सैलाब से जाँ बहक 307 अफराद के वर्सा को चेक दे दिए। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15-15 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। मुकम्मल तबाह घर के लिए 10 लाख, जुज़वी तौर पर मुतासर घर के लिए 5 लाख रुपए देंगे। उधर मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। 30 अगस्त तक बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मजदूर दोस्त पॉलिसी, सनती कारकुनों को फ्लैट की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। दरख्वास्तें तलब कर ली। वज़ीर आला की हिदायत पर माजूर वर्कर्स का फ्लैट अलॉटमेंट में 2% कोटा होगा। इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की वेवगान के लिए भी 3% कोटा मुख्तस किया गया है। ज़िला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर से फ्लैट की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सनती कारकुनान को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से कारोबारी बरादरी के वफ्द की मुलाकात। हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली, सीवरेज के मसाइल से आगाह किया। कारोबारी वफ्द का सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार। गवर्नर सिंध की विफाक की तरफ से मसाइल के हल की यकीन नहानी। कहा कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बातचीत की जाएगी। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफ्द में ज़ुबैर मोतीवाला, जावेद बिलबानी, इदरीस मेमन, फैसल खान और यूनुस मकदा शामिल थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी आमने सामने। मेयर कराची ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी पर तनकीद की थी। कहा था कि सिंध गवर्नमेंट सालाना जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए का फंड्स देती है। जमात इस्लामी के 9 टाउन्स में ये फंड्स कहाँ जाते हैं? जमात इस्लामी सिंध के रहनुमाओं की मेयर कराची के खिलाफ अदालती कार्रवाई की धमकी। कहा कि सिंध हुकूमत 2 अरब रुपए के माहाना फंड्स देती है। इसमें से मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन और दीगर वाजिबात अदा किए जाते हैं। मेयर कराची बताएं कि MC की बनाई सड़कें बारिश में कैसे बह गईं। PIA को तैयारों की कमी का सामना। लाहौर से पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेरिस से लाहौर के लिए आखिरी परवाज़ 12 सितंबर को रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर ता पेरिस कम डिमांड के बायस परवाज़ को अक्टूबर तक मुअत्तल किया है। मुसाफिरों की डिमांड बढ़ने पर परवाज़ दोबारा बहाल हो जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में तबलीगी मरकज़ रायविंड आमद। तबलीगी जमात के अकाबिरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और दीगर से मुलाकात हुई। तबलीगी जमात के अकाबिरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के वीज़ा मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई।
पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज हफ्ते को होगी। गजा में कहत पर अमेरिका में भी आवाज़ें उठने लगी। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। समाजी राबतों की वेबसाइट पर लिखा कि सदर ट्रंप के पास फ़लस्तीनी अवाम को भूख से बचाने का इख्तियार है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब बहुत हो चुका। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा इसराइली जंगी मशीन को नहीं दिया जाना चाहिए। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि अगर अमेरिका पर दिन रात बमबारी होती, अमेरिकी बच्चे मारे जाते, शहर मलबे में तब्दील हो जाते, खुराक खत्म हो जाती, तो क्या हम खामोश रहते? तो गजा के मासूम बच्चों के लिए खामोशी क्यों? हर अमेरिकी टैक्स दहिंदा इसराइली जंगी कार्रवाइयों का हिस्सा है। मैं किसी गैर मुल्की जंग की कीमत अदा नहीं करना चाहती। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला। एक दूसरे के 146 जंगी कैदियों को रिहा किया गया। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले भी जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने मशरक़ी यूक्रेन में मजीद 2 देहात पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन का रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद धमाका हुआ, जिससे आग लगी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले से रोक दिया। उधर नॉर्वे और जर्मनी ने यूक्रेन को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम देने का ऐलान कर दिया। जदीद दिफाई निज़ाम जल्द जर्मनी से यूक्रेन मुंतकिल हो जाएगा। बरतानिया में पनाह गुज़ीनों के मुकदमात का निज़ाम तब्दील करने का फैसला। हुकूमत ने अपीलों में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए नया इदारा कायम करने का ऐलान कर दिया। नए इदारे के ज़रिए अपीलें अदालतों के मुकाबले में जल्द सुनी जाएंगी। बरतानिया में इस वक्त पनाह गुज़ीनों की 51,000 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्क भर में रबीउल अव्वल के इस्तकबाल की तैयारियां। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी समेत जोनल कमेटियों के इजलास तलब। महकमे मौसमियात ने आज चांद वाज़े तौर पर नजर आने की पेशगोई कर दी है।